resident and non-resident, they cannot file in form number 1. They have to necessarily file in form number 2. Similarly, if I am a director or a partner, then I can't file in form number 1. And form number 2, if I am a partner, I can't file. I need to file in form number 3. There was some press release where it has been said that all those who are having a joint ownership, they'll not be able to file form number 1, but later on it has been withdrawn. One house property, even if it is joint, you can file in form number 1, but you cannot forward loss or you cannot have a carry forward loss so far as the income from house property is concerned if you want to file in form number 1. So this is the situation. Similarly, if you have an income from business and profession, 1 and 2 are not applicable, 3 is applicable, and for 44 AD, 4 is applicable, and normal business and profession 4 is not applicable. इसी तरीके से कैपिटल गेन के अंदर जो है, अगर आपके पास कोई कैपिटल गेन है अनलिस्टेड का, तो फॉर्म 1 में नहीं आप जा पाएंगे. अगर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो 1 में नहीं जा पाएंगे. ये एक मैंने बना रखा है, ये प्रेजेंटेशन और मैं कोशिश करूंगा कि ये आप लोगों को मिल जाए. इसमें अगर किसी की क्वेरी हो तो मैं इसमें फिर पीछे आऊंगा. अदरवाइज मैं इसको एक खाली प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैंने डाला है. और जो चेंजेस हैं वो इसके बाद अब शुरू होंगे. अब आपको 4, 5, 6, 7 में भी फॉर्म है तो आप 4 में जो है डाल सकते हैं. और अगर प्रेजेंटिव टैक्सेशन है एक्सक्लूडिंग एलएलपी. सिमिलरली फॉर्म एलएलपी जो है अगर है इंक्लूडिंग तो 4 नहीं है, 5 है, 6, 7 नहीं है. और कुछ एक चीजें जो हैं इसके अंदर जैसे अपनी जो रिटर्न में फाइल करेंगे उसमें जो अमेंडमेंट आई हैं दैट आई विल टेक यू फॉर 2021. People ask me that where you can file a manual return, is it possible? सिस्टम नहीं एप्लीकेबल है या आदमी टेक्नो सेवी नहीं है. तो आज की डेट में it is only available to super senior citizens, those who are above the age of 80 years. They can file paper return. All other are required to file electronic return. अब किसका DSC लगना है, किसका उससे हो जाना है, EVC से हो जाना है, ये भी मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है. ट्रेडिशनली मेरी प्रेजेंटेशन में होता है, इसको मैंने बना दिया है. इसको मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा, मैं चेंजेस के ऊपर जाऊँगा. अब मैंने सर अपनी प्रेजेंटेशन को फॉर्म वाइज डिटरमाइन किया है. पहले जितने चेंजेस जो हैं वो सारी रिटर्न्स के अंदर एप्लीकेबल हैं, उनको मैंने आई हैव ट्राइड टू टेक इट. नाउ फॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इनमें कॉमन जितने चेंजेस हैं उनको मैं एक साथ ले रहा हूँ. फिर इसके बाद दूसरे लूंगा कॉम्बिनेशन 2, 3, 4, 4, 5, 6 ऐसे करके मैं कोशिश करूंगा और 7 नंबर को भी लूंगा. मैं कंपेयर कर रहा हूं लास्ट ईयर रिटर्न से खाली, और उसके अलावा मैं रिटर्न फाइलिंग पे कोई और चीज नहीं ले रहा हूं. आई एम टेकिंग ओनली चेंजेस इन दी ITR रिटर्न्स एज कंपेयर टू असेसमेंट ईयर 2019-20. तो एक जो है आपका ऑडियंस से जो हमारा आया है कि भी आप इन्वेस्टमेंट्स जो हैं और 10AA की जो है वो डिडक्शन जो है, और सेक्शन 54 से लेकर 54GB तक यू कैन claim the deduction even if you make the contribution or payment or investment up to 30th June 2020. जिससे this amendment have been made by the ordinance 2020, and as such this has been enabled in this particular form, so that we should not claim it twice, once in this year, in next other in the next year, because in the next year they will have a track on it. So for this they have introduced
in all form number 1 to 6, a schedule which is called schedule DI. So DI schedule have been divided into three parts: part A, part B, part C. Part A relate to deposit in ATC, etc. Commonly we know chapter 6A. Part B about the 10AA, and part C is about 5450 GB. Now, when I see in the form itself, they have divided this into two parts: eligible amount for deduction in financial year 1920 as per schedule 6A part B, deduction in respect of certain payment, and then any payment which has been made between 1/4/20 and 30th June 20, which is yet to end. So it means if I want to claim a deduction for the previous year ending on 31st March 20, then I want to make some contribution in all these sections. Then I need to wait for filing of the return. If I do not want, then I can file the return and I have to give this amount. Now, suppose there will be a complication if I pay an amount, because the ATC, when I am making an insurance payment which may be related to previous year, but I do not want to claim in the previous year because it might be possible that the overall deduction is already over before 31st March. So I do not want to claim anything. I want to carry over in the next year certain payment which are related to previous year. So I can carry, there is no problem, and I can claim in next year also. But if I want to pay because of the lockdown or etc., then I can pay and claim. So this is given in schedule D1 so far as investment is concerned. Next is 10 double दिखा A. रहा है, ये दिखा In रहा है। 10 double A also, somebody is unmute. Then in this also, they have said that claiming the deduction whether the condition have been complied between 1st April 20 to 30th June, yes or no. This is a drop down, so we can we have to furnish the information here in the extended period. Similarly, for claiming the capital gain sometime on the property or otherwise, we need to make certain investment in various sections which are there from 54 to 54 GB. So there also they have divided into two parts which have been made, the amount utilized and then amount which has been paid between 1st April to 30th June. They want a clear cut, a separate disclosure for this. Now, there is another addition which has been made in the schedule of DI where the investment is made. The section 80EEA and 80EEB have been added, which was included in the last year budget in 2019. So in the red mark, I have shown this as a these are the two additional items which are there in this form, which was not there, and this is in 1 number, 2 number, 3 number, 4 number, 5 number, and 6. Similarly, in schedule 6A, now ATLA, there was an amendment in 2019 about ATLA 1 and ATPA. So they have included this in this particular form if there is a deduction about this. So friends, sometime here I would like to say in practical sense, some of the chartered accountant we have found that they have already a prescribed list which they circulate to their juniors and their client, that you fill up the information in this prescribed form, and the prescribed detail when it comes and they start filing the return. So while revising those prescribed format which we give to our juniors or to our clients are required to be amended for all these amendments which I am highlighting so far as in relation to form number 1256 at present. Now, these are the changes
which are there in all 6 forms. Now I am taking you to the amendment which are there in form number 1, 2, 3 and 4. All the forms together. Last year there was an amendment which has been made that even if I have a income which is below the threshold limit and I'm paying or I'm withdrawing or depositing, or there are certain other conditions which have been prescribed in 7th proviso to 139(1), I need to file the return. So they have included this schedule here wherein it is to be in part A in general information. We have to say that whether we are filing the return in view of these provisions or we are filing the return as a normal SSC. So below taxable return will be enabled in the system if we tick any of this. So what are those information on the basis of which I need to file the return? This is also important. We need to ask our client. If the amount or aggregate amount exceeding 1 crore in one or more current account during the previous year. If the amount is deposited, then I need to file the return even if there is not a threshold income. This is possible in some of the uh, people, those who are rendering certain services, they deposit a lot of money on which they get only small amount of collection charges. So they deposit for banks also and then they transfer it. So this is the particular thing they want to track all those people, those who are having account and they are depositing 1 crore. This is beginning. Next year it may be reduced. Let us say 10 lakh, let us say 50 lakh, whatever may. Next are those people, those who are incurring for themselves or for any other person. For example, if my father is having a assets or bank balance or something, but he is not having an income above the threshold limit, but he pays an expenditure exceeding 2 lakh rupees on the foreign travel of my children or myself, my wife, then in that case, my father is required to file the return irrespective of this fact, whether he is having a taxable income or not. The next is the amount expenditure or an rupees 1 lakh on consumption of electricity. Last year, when I was telling on the budget, then I was telling everyone that if there are certain meters which are in your name and which are being shared by various people, so we should remove those electric meter in from our name. So here the issue will come that what the act says, have you incurred expenditure of an amount or aggregate of an amount exceeding 1 lakh on consumption of during the previous year. Now there may be a case where a common meter is there and it is being shared by everyone, but meter overall in a year is having more than 1 lakh. Am I supposed to file the return? Now, this is a question for which no clarification has come, but it is being shared by, let us say, 5 people, and overall it is less than 1 lakh, but it is in my name. According to me, what will happen that the information will be picked up from the electricity supplier companies, and if the return is not being filed, then a notice may come under section 148 later on. So it will be in our interest that even if it is not there and we are incurring, then we must file the return and we should not get these types of the notices later on. Now,
the this is to be filled up in Part A journal. Now I take you to the all forms where amendment have been made 1 to 7. As it was said in the budget, though in 2020, that from a particular date, the PAN or Aadhaar will be substituted with each other. If you do not have a PAN and if you have an only Aadhaar, then in that case, it can be also quoted in lieu of the PAN, and PAN will be automatically allotted also if you are having an Aadhaar. And recently there was a circular which has been there, and now you do not have to go to the this service provider for filing the PAN form. If you have an Aadhaar, you can go to the site, and the facility has been enabled I think 2 days back, and you can now get a PAN if you have an Aadhaar. So they have said that you can give lot of places where the PAN was compulsory. For example, in case of co-owner, in case of other thing. So that is being now substituted in all the places between the PAN and Aadhaar as a alternative of both the things. There may be a case where you do not have a PAN, my tenant may not be having a PAN, he is only having an Aadhaar, so I can quote there also. In case of co-owner, if my wife is co-owner, then I can provide my wife's PAN number, my PAN number, or Aadhaar number, or my wife's Aadhaar number or PAN number, whatever is available. Now, these are the various places where the changes have been made in all the 7 forms. Now, I take you to a person filing the income tax as a representative assessee. In the case of audit, there also PAN was there, so Aadhaar is there. Debtor exceeding 1 lakh, there also they have changed. Co-owner of property I have already shown you. Tenant, I am telling you. Buyer of immovable property 194 IA, a person who has a tax credit is being claimed by SSE. Tenant buyer who has a tax deduction at source. Key person and person verifying the return form. Person holding 10 or more percent of voting power. They are required to give the PAN. Now they can give Aadhaar. Shareholder of unlisted company, including startup, then income clubbed, and Portuguese civil court. These are the various places which I could identify in the form where in PAN or Aadhaar can be quoted. Now, another amendment is being made in the form about the DIN number. As you know, all from 1st May 2019, the Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman have said in the press that if you are receiving any notice, document, something from the department not containing the UID number, then you can throw that particular document into dustbin and do not respond at all. So, if after the cut-off date, if you have received any notice which is prescribed in the red portion under section 139(9), 142(1), 148, 153A oblique C, then or an order under section 119 for filing of return. In such case, you need not file return in all those cases. But if you are filing a return after that date in respect of assessment year 2021, then you need to give that date number also. Now, what will happen with this? They will integrate all the cases
where the compliance have been made and where the compliance has not been made, so that they can start some proceeding against the non-compliers. Now, what is happening that they want a bank account number in case if I want to have a refund. Now, what was happening that some of the people might close one bank account. Now, if they close the bank account, they have expressed the difficulty that there was no mechanism which was available with them to inform to the department that they do not want any refund directly credited to that account. So, in this case, now they have provided an additional facility to give you multiple bank accounts for taking the refund, and as such, and they have enabled that particular in part E other information about the multiple bank account for the purpose of claiming the refund. This is also possible because CPC sometime have an arrangement with the, let us say, SBI. So if you have account in SBI, they will process those things very fast. But if suppose they do not have an arrangement with the Kotak Bank or any other private bank or cooperative bank, then they will have to send through some mechanism through that particular thing. So for this, this purpose, they have asked to give you multiple bank accounts. Now, all form is over. Now, the changes which are there in 2, 3, 5, 6, and 7. Form 1 and 4 is not there in these changes. There is a concept which has been brought quite some time back, pass-through entities. Now, let me tell you, friends, what is these pass-through entities? Then I'll be able to tell you. There are certain, you can say, service provider or mutual fund. Those mutual funds are doing the business or investment activities, or they are letting out the houses. They are prescribed pass-through funds. And what they do, that they earn the income and they ask their shareholder or unit holder to pay the taxes on it. Now, somebody will commonly think that how I will come to know that this particular entity have earned any income on which I am supposed to pay the tax. They are also earning certain income, business incomes, which are being paid taxes in their hand and they are not being taxed in the hands of the unit holder or the entity which is being taking the effect. So there are certain amendments which have been made wherein carry forward of the 2019 was available and that can be set up. Now, how I get this information? All these entities, they are required to issue a certificate to every eligible unit holder giving the information how much account they are accounting in their own mutual fund or the entity and how much amount we have to pay the tax in our cases in the individual HF etc., where we need to pay the taxes. So this is the amendment which they have made in schedule OS first, where now if you have the any pass through income oblique loss. Now this is important. Earlier it was only income. There was no loss which can be offsetted by the unit holder. Now the loss is also, especially in the next year or in this year also, may be possible that because of the
downfall in the strategic investments or otherwise, they incur a loss which is required to be passed through to the unit holder for claiming in their return ending on 31st March 20. So in Schedule OS at two places, one is in interest and then overall any income on which loss is there. Then it is there in 11 number. And 7 number also, column number 11 and 7 not form. So this is the amendment which has been made for the pass through. Now similarly, if suppose in my balance sheet there is no house property, however I am having a pass through income in my house property. Now, or there is a loss. Now, what will happen? I will not be able to justify the department that how can I have a loss or an income if I do not have a house property? Or how can I have a capital gain if there is no capital asset? But the mutual fund is having. So what they have done that all carry forward losses schedule CFL will have a specific column about the pass-through entities in the form of short form PTI. So this is applicable in house property, short term, long term. This is the situation. And next is losses from the pass-through entities in respect of certain things which are being also depicted in this particular format. Mr. DK, can I, since my slideshow is little bit coming in your way, can I take you to the down? Now, the which is the amount of losses to be carried forward for future year is absolutely it is to be provided in this format. So the red portion which I have given you, it is being providing you the window for all these things. This pass through will be there in mostly those people, those who are doing in mutual fund. Similarly, if you have made an investment, so they have also shown here that this is to be shown separately and drop down will be provided that how much investment you have and then how much is the share of the loss which has come into your kitty as it distributed in various head. Some of the mutual funds, as you know, that last year a grandfathering provision in 112 was there that any investment in the etc., which is there up to I think 31st January. In that case, the capital gain will not be levied if you sell it on that, and thereafter it will be taken as a capital gain. So for that purpose also, in the pass through also, all alternative investment funds, it is applicable and they have to specify and give you a certificate, and these are required to be disclosed in schedule S1 where you have to pay 10% and where it is not to be paid because it is exempted under section 112A. Similarly, in schedule CG also it is given separately. Now
all those who are having any financial assets which is there in the foreign. You may have a share, you may have a bank account, immovable property, you may have a beneficial interest, you have anything. So now they want that in all these particulars, we are required to give the zip code. Like in India, we have a PIN code. Most of the foreign countries, they are having a zip code. So they will come to know where the property, in fact, exactly is there. Lot of information which are being gathered in this form is important. For example, if you, I should not say you, if somebody uh, shows an asset here or shows an asset for which there is no zip number which is being given, and there is a demand which is being there in India, can it be recovered from foreign country? Yes, it can be recovered. That is why they are getting all these. They will also try to see the valuation point of view. For example, if we have a property in London and I show it a 400 square foot house, I show it out only for 20,000 rupees. So if I give a zip, but similarly, a 400 square house, if it is in Uganda or in a country where nobody would like to go, it may come in 20,000 rupees or less also. So this is important that how we need to provide the zip here. Now, let me take to you to the changes in the form number 6. Friends, if you have any query, we can take it up to form number 5 uh, till now, or can I continue for the form number 6? सर 2-3 क्वेरीज आई हैं, मैं पढ़ देता हूँ हाँ, सर। बोलिए। हाँ, मैं हाँ बता जी, देता हूँ बोलिए। सर, 1 मिनट। एक तो 2 क्वेरीज आई हैं सर इलेक्ट्रिसिटी बिल में। एक सिकंदर सचदेवा हाँ, जी ने पूछा है कि अगर इफ रिगार्डिंग रेंटेड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन द नेम ऑफ ओनर बट रेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड बाय द टेनेंट, तो सर उस केस में आईटीआर में टेनेंट भरेगा या सर लैंडलॉर्ड, कैसे होगा? नहीं, देखिए इसके अंदर जिसके नाम मीटर है, दोनों को भरनी पड़ सकती है। इसमें उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है। अगर मैं 1 लाख से ऊपर टेनेंटेड में हूं और पेमेंट कर रहा हूं, लैंडलॉर्ड को दे रहा हूं, आप इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को नहीं दे रहे। फिर अगर आप बिल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को दे रहे हैं और वहां पे टेनेंट की कोई एंट्री नहीं है किसी तरीके की, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि दोनों को भरनी है या सिर्फ टेनेंट को भरनी है। मेरी ओपिनियन में जो मेरे को लगता है कि लैंडलॉर्ड जो है उसको है, क्योंकि एक्सपेंडिचर इनकर्ड जो है वो लैंडलॉर्ड कर रहा है, रिकवर कर रहा है, मैं उसके थ्रू हूं। लेकिन ये डाउट भी आ सकता है कल को लैंडलॉर्ड के पास नोटिस जाए, वो मेरे नाम दे दे और मैंने रिटर्न नहीं फाइल करी हो। तो अगर प्रिकॉशनरी कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि आज आपकी डेट में बता दूं, टेनेंट जो 1 लाख रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल का साल का दे रहा है, क्योंकि दिल्ली विल्ली की तो बात बता दूं, बहुत सारी 200 यूनिट तक फ्री है यहाँ, और की स्टेट का जो है चलिए, पर वो कहीं ना कहीं उसकी इनकम अगर टैक्सेबल नहीं है तो ये भी एक चीज क्वेश्चन है। तो मेरी ओपिनियन में टेनेंट को भी फाइल कर देनी चाहिए, अगर वो कोई हैसल नहीं करना चाहे। कोई क्लैरिटी नहीं है जिससे मैं कोई आपको बहुत स्ट्रांगली बता सकूं कि करना है या नहीं करना है। चलिए सर, दूसरी क्वेरी जो आई है सर वो फॉरेन ट्रैवल के लिए आई है। उसमें क्वेश्चन ये है कि माय फॉरेन ट्रिप एक्सपेंस इज स्पॉन्सर्ड बाय माय ब्रदर एंड ब्रदर इज हाँ, एनआरआई, ही इज लिविंग इन यूके, his income is not हाँ, taxable in India, he is not having any PAN और आधार इन इंडिया। तो इस केस हाँ, में सर इनकम टैक्स की रिटर्न, भाई मैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में ये फॉरेन ट्रैवल दिखाऊंगा, क्योंकि सर ब्रदर तो आउट ऑफ इंडिया है, इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, तो वो तो इंडिया में रिटर्न भर के इस चीज को दिखाएगा नहीं। तो ये इस इंसिडेंस में सर फॉरेन ट्रैवल को कौन मतलब शो करेगा सर? चलिए लेट अस, इसके लिए हम चलते हैं वहां पे जो अमेंडमेंट आई है। एक बार मैं आपको अमेंडमेंट पे लेके जाना पड़ेगा, बहुत पीछे एक्चुअली, फिर थोड़ा सा कर ले। देखिए
ये किसके लिए कंपलसरी है, पहले ये देखा जाए। अगर मेरा ब्रदर यूएसए में है और वो मेरा कोई स्पॉन्सरशिप में कर देता है, वो किसी भी कंडीशन में इंडिया में कोई उसकी टैक्सेबल इनकम नहीं है। जो बियर कर रहा है, देखिए यहां पे क्या कह रहा है, हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर, तो जो इंडियन है उसने तो कोई एक्सपेंडिचर किया नहीं सर। फॉर योर सेल्फ, मैंने नहीं किया, मेरे ब्रदर ने किया है, और फॉर एनी अदर पर्सन। तो आप ब्रदर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो मेरी ओपिनियन में मेरे ब्रदर को यूएसए वाले को इंडिया में रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी, क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं है। 139(1), एक बार इसको, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉन रेजिडेंट्स। नॉन रेजिडेंट्स को इवन नहीं भरनी पड़ेगी। लेट मी फ्लैग दिस क्वेश्चन फॉर ए मिनट। क्योंकि ये बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा है और आई थिंक कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नॉन रेजिडेंट ब्रदर को भी रिटर्न फाइल करनी पड़ जाए। सर इस केस में नोटिस तो ट्रेवलर को भी आ सकता है, क्योंकि उसके पासपोर्ट पे वीजा लग रहा है डिस्पाइट द फैक्ट कि उसने एक्सपेंडिचर तो नहीं किया, बट ट्रेवल नहीं, उसके कैसे आएगा? नहीं, उसके नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर जो रिपोर्ट होगा अगर किसी अथॉरिटी से, फॉर एग्जांपल, या तो मुझे ही आएगा कि भाई आप फॉरेन कंट्री ट्रेवल करे हैं, 4 जगह गए हैं, आपने रिटर्न नहीं फाइल करी, मान लीजिए मैं टैक्सेबल ही नहीं हूं। फॉर एग्जांपल मेरी मदर हो सकती है, आई हैव 2 ब्रदर, वन इज स्टेइंग इन अमेरिका, अनदर इज स्टेइंग इन लंदन। मेरी माँ 4 बार जाती है अगर इंडिया से बाहर, 2 लाख से ऊपर का खर्चा अपने आप हो जाएगा, कोई कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन वो वहां से कर रहा है, तो एम आई माई ब्रदर इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न और नॉट? दिस इज द क्वेश्चन which is to be. So far as my mother is required to file the return, I am confident no, because she is not doing an expenditure. राइट सर। चलिए सर, फॉर्म नंबर 6, ये सर, दिस अमेंडमेंट हैव बीन मेड फॉर स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनीज, जिनको कि इन्होंने एक एग्जम्पशन दी कि अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है फॉरेन कंपनी से तो वो कंसेशनल रेट पे टैक्स होगा 15%। तो इन्होंने 115 बीबीडी के अंदर वो क्लियर कट बता दिया है कि जहां आपको 15% पे टैक्सेबल है, वो आप हमें सेपरेट डिस्क्लोजर दे दें कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी फॉरेन कंपनी की फिर आपके शेड्यूल में कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं। सो ये इन्होंने है शेड्यूल फॉर्म नंबर 6 के अंदर। दूसरा इन्होंने किया है, ये शेड्यूल सेक्शन 8 कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। शेड्यूल शेयर होल्डिंग ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, ये सर जो है, अदर देन कंपनी विच आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 और 25 ऑफ द अर्सवाइल 1956 एक्ट और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और ए स्टार्टअप, उनके लिए शेड्यूल SH2 दिया है। SH1 के अंदर इन्होंने क्या चीज अब ये हमसे मांग रहे हैं? अब ये हमसे ये मांग रहे हैं नेम ऑफ शेयर होल्डर। ये पिछली बार भी बड़ी भारी दिक्कत आई थी। और रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया, मेरे पास ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें उनको ये पता ही नहीं शेयर होल्डर कौन है। टाइप ऑफ शेयर, पैन ऑब्लिक आधार, और ये आपको बता दूं लिस्टेड कंपनियों के लिए नहीं है, ये अनलिस्टेड कंपनियों के लिए। बहुत लोगों ने लड़ा पिछली बार, तो उन्होंने क्या किया, दिखाई नहीं। अब जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से डेटा शेयर होगा तो आपकी रिटर्न जो है वो रॉन्ग फाइल हो जाएगी। तो इन्होंने यहाँ पैन ऑब्लिक आधार भी डाल दिया और इसका शेड्यूल सेपरेट कर दिया, स्टार्टअप का अलग कर दिया। फिर ये यहाँ और क्या मांग रहे हैं, डेट ऑफ अलॉटमेंट बताओ,
नंबर ऑफ शेयर बताओ, वैल्यू पर शेयर, इश्यू प्राइस और अमाउंट रिसीव। फेस वैल्यू आपकी कुछ हो सकती है, इश्यू प्राइस कुछ हो सकती है और रिसीव प्राइस हो सकती है, प्रीमियम हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये यहाँ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये आपकी बैलेंस शीट से ही अब अगर इश्यू करेंगे आप शेयर्स को, अब ये यहाँ पे बड़ी दिक्कत लोगों ने लास्ट टाइम मेरे को पूछा तो मैंने कहा साहब घबराओ मत, ये सिर्फ प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन यहाँ मांग रहा है इस शेड्यूल में। आपको एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर पे ये सारी देनी है। बहुत सारे लोगों पे पता ही नहीं है कि कहाँ है। तो उस केस के अंदर एक एफएक्यू लास्ट टाइम आया था कि आपके पास अगर नहीं है तो आप उसमें क्या क्या भर दो, 99 करके कुछ उन्होंने बोला था। अब इस साल के लिए कोई इसका एफएक्यू नहीं आया है। अभी जब फॉर्म 6 आएगा उस टाइम पे क्या एफएक्यू आएगा, क्योंकि मोहित जी ने, प्रकाश जी ने ये जल्दी कर ली। फॉर्म 6 में तब देखेंगे कि इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा। अगर मुझे ये सब चीजों का देना पड़ेगा तो इसका मतलब ये होगा कि इस शेड्यूल का टोटल हमारी बैलेंस शीट के टोटल से मिलना चाहिए। कौन सा? फेस वैल्यू का, ये इश्यूड वैल्यू का कैपिटल में, और ये टोटल का। सो दिस इज गोइंग टू बी एन हरक्यूलियस टास्क अगर ये फॉर्म नंबर 6 में। तो अभी जैसे लॉकडाउन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम जो है वो अपना क्लाइंट्स को बता सकते हैं भाई ये तैयार कर लो। इसी तरीके से इन्होंने रॉयल्टी जो है वो कुछ ऐसे हैं जो 50% पे है। रॉयल्टी नॉर्मली 10% पे टैक्सेबल होती है, लेकिन कहीं कहीं 50% पे है। तो इन्होंने उसके लिए एक अलग से शेड्यूल एसआई और शेड्यूल ओएस बना दिया, जिसके अंदर आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देना है। 10% वाला अलग देना है और दूसरा आपको अलग देना है। ये ओएस के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन। फॉर्म नंबर 6 में आपको अब जो है, क्योंकि कुछ टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट में कंसेशन मिले, कुछ ऑर्डिनेंस में मिल गई और कुछ पिछले फाइनेंस एक्ट में मिले जो कि एप्लीकेबल है। तो हमें ये बताना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक जब टैक्स कैलकुलेट करेगा कि आप कौन सा सेक्शन इसके अंदर जो है वो आप यूटिलाइज कर रहे हैं। ये डोमेस्टिक कंपनी के लिए, ताकि रेट ऑफ टैक्सेशन उसी हिसाब से आपको लाया जाए। इसकी अभी यूटिलिटी नहीं आई है, तो ये तीनों सेक्शन का अलग आएगा, यस नो आएगा, कुछ और आएगा, इसके बारे में मैं अभी नहीं बता पाऊँ। एक और चीज आ गई, हम लोग रिटर्न वेरीफाई कर देते थे, जो डायरेक्टर मिल गया उसके साइन कराए और भेज दिया। अब इन्होंने इसके अंदर इसकी और केवाईसी नॉर्म तगड़ी कर दी। एक तो आपसे रेजिडेंशियल एड्रेस भी मांग रहे हैं, अब पैन आधार मांग रहे हैं और डिन नंबर मांग रहे हैं। तो डिजिटल अब आप उसी डायरेक्टर का लगा पाओगे जिसका यहाँ डिन नंबर दोगे। पहले तो डिजिटल जिसका अप्रूव्ड होता था वो लग जाता था, साइन कौन कर रहा है इसकी कोई वो नहीं थी। अब इन्होंने ये कहा है तुम यहाँ पर्टिकुलर फाइल करो कि जिसको एमसीए ने इश्यूड बाय एमसीए, जो डिन नंबर है वो आपको देना है। दिस इज इंपॉर्टेंट सो फार एज फॉर्म नंबर 6 इज कंसर्न। अब कोनर के अंदर यहाँ पे इन्होंने जो थोड़ा सा अलग से जो है वो फॉर्म के अंदर कर दिया, जो फुली ओन्ड है और जो को ओन्ड है उनको इन्होंने अलग से कैपिटल गेन के अंदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन शेड्यूल के अंदर ये डाल दिया है इन्होंने, अलग अलग को ओनर वाले अलग। एक इंडेस वाले में क्या था कि नो अकाउंट वाले केस थे, कुछ लाइजन ऑफिस में फिक्स इनकम देते हैं तो वो क्यों दें या कुछ ऐसे है, तो ये इन्होंने डिलीट कर दिया। इन्होंने कहा कि ऐसी कोई इंडेस कंपनी होगी नहीं जो अकाउंट ही ना बनाती हो, तो अब इन्होंने उसको डिलीट कर दिया है।
अब वो इंफॉर्मेशन पूरी ले रहे हैं। अब सर ये 6 नंबर में एक्सक्लूसिव जो चेंजेस आए थे वो मैंने बता दिए। इंडिपेंडेंट जो आए थे वो पहले जहां जहां थे वहां कर दिया। अब सिर्फ 3, 5 और 6 में जो आए हैं उनको मैं कवर करना। मुझे कोई और क्वेरी हो तो मैं आगे चलने से पहले। सर एक क्वेरी मिस हो गई थी सर, पहले वो वाली मैं पूछ सॉरी, रहा हूँ सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर क्वेरी ये थी कि एक मेंबर की कि बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज हैं सर दिल्ली में जिनका लैंडलॉर्ड तो एक्स है, लेकिन मीटर जो है ना प्रीवियस ओनर के नाम पे है, वाई के नाम पे। हाँ अब उस केस में सर मान लीजिए बिल या तो एक्स भर रहा है करंट ओनर, या फिर एक्स ने जेड को रेंट पे दे दिया और अब जेड रेंट भर रहा है, जबकि मीटर जो है ना सर वो प्रीवियस ओनर के नाम पे है, वाई के नाम पे। तो इस केस में इनकम टैक्स की और रिटर्न में कौन दिखाएगा सर? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मर भी चुके हैं। ये भी सर पॉसिबिलिटी है सर, बिल्कुल। नहीं है, मैं थाउजेंड्स बता सकता हूँ। राइट। मैंने एक रोहिणी में 5 साल पहले एक बेचे था प्लॉट, वो हाउस। उस पट्टे ने आज तक अपने नाम नहीं कराया मीटर। राइट। तो सर इस केस में तो कैसे प्रोसीड क्या करेंगे होगा, सर? देखिए हम्म। फंडामेंटली अगर हम पहले देखते हैं प्रिंसिपली जो खर्चा करेगा उसको अपनी रिटर्न भरनी चाहिए। ये एक आप समझो इंटेंशन ऑफ द लॉ भी कह सकते हैं कि भाई आप 1 लाख रुपया तो खाली बिजली पे खर्च कर रहे हो और आपकी 2.5 लाख की इनकम भी नहीं है। तो जो ऐसे ओनर हैं या ऐसे जो डिजीज पर्सन हैं, इनको जब नोटिस आएंगे तो इनको क्या करना पड़ेगा, या तो रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी या लड़ना पड़ेगा कि साहब ये है, चिट्ठी पत्री करनी पड़ेगी। ये अभी मैं इसके बारे में, जब ये अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाएंगे तो मेरी ओपिनियन में ये सीधे नोटिस इशू नहीं करने चाहिए। इनको पहले 133(6) में ऐसी इंफॉर्मेशन मांगेंगे कि साहब आप ये बताओ कि भी आपके नाम से इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा हुआ है, लाख रुपए से ऊपर है, आपकी रिटर्न हमें कहीं नहीं मिल रही, तो आप जो है हमें ये बताएं कि भाई ये क्यों नहीं है, आप डिटेल दो। तो वो ये लिख के देगा कि साहब देखो मैं तो किराएदार नहीं हूँ, मैं तो मकान मालिक को किराएदार देते हैं और किराया मेरे पास जितना आता है वो उससे कम है। दूसरा ये भी हो सकता है, मैं आपको एक और बताऊं, मान लीजिए हम 3 भाई हैं, 3 फ्लोर हैं, मीटर कॉमन है, आपस में क्या है, पिताजी के नाम पे वो लगा हुआ है, पिताजी की कोई इनकम नहीं है और सबका 1-1 लाख से ऊपर आता है। तो पिताजी के नाम नोटिस आएगा तो वो बताएंगे कि जी मेरे 3 बेटों के नाम है, या मैं तीनों भाई का मैं भर देता हूँ, मेरे नाम है, तो मैं तो 1 लाख से ऊपर है तो मैं रिटर्न, अगर मेरी कोई और इनकम नहीं है सिवाय इसके इलेक्ट्रिसिटी जो पेमेंट करता हूँ वही है, 1.5 लाख इनकम है, 1 लाख वहां करता हूँ, 50,000 का खाना पीना खा लेता हूँ, बाकी मेरे भाई दे देते हैं। तो उस केस के अंदर ये अपने को नोटिस या इंफॉर्मेशन सीख करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के। और कोई, अगर जब मैं आपको आगे दिखाऊंगा 26 AS का एनहांस फॉर्म, तो ये वहां से भी इंफॉर्मेशन देखेंगे कि ये आदमी खाली सूखी इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट कर रहा है या इसके नाम पे और भी चीजें हैं। राइट एक सर, है राइट ना, सर, राइट सर। एक मैं एडिशनल कमिश्नर के गया था, तो उसके जो है इन्वेस्टिगेशन विंग में था, तो उसके ना पीछे एक तख्ती लिखी हुई थी, वो बड़ी मुझे दिल को छा गई, अच्छी लगी। वो ये कहता है यू नेवर नो व्हेन यू बिकम रिच बट आईरेस नो। सो ये जो आपको नहीं पता है कि आप कब अमीर बन गए, ये अब आईरेस बताएगा तुम अमीर बन गए भाई, तुम बिजली का 1 लाख से ऊपर का बिल दे रहे हो लेकिन कमाई 2.5 लाख से नीचे है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दिस। राइट सर। सर एक क्वेरी हमारे मेंबर्स भरत सिंगला जी की है। भरत जी आप प्लीज डायरेक्ट पूछ लीजिए अनम्यूट होके। सर गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग भरत जी। सर जैसे ना एनएफपी पे ऑफिसेज हैं, वहाँ जो हाँ मीटर होता है वो तो बिल्डर के नाम पे होता है, उसमें हाँ सब मीटर लगा रखे होते हैं सबके नाम पे और बिल देता है। और उन लोगों ने अगर दे रखे हैं अपने ऑफिस रेंट पे या अपने खुद ऑफिस चलाते हैं, उस केस में क्या होगा सर? क्योंकि बिल तो कई बार लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है सर। सर जी, सबका लाख रुपए से ऊपर होता है, कोई भी हाँ ऐसा जी, हाँ जी। टेनेंट नहीं है, इवन 200 स्क्वायर फीट के ऑफिस वाले का भी लाख से ऊपर होता है।
मैंने हाँ आपको जी सर। फिर बताया कि भरना उसको चाहिए रिटर्न जो लाख रुपए से ऊपर की एक्सपेंडिचर बुक कर रहा है या कर रहा है। लेकिन आपके अगर आपकी मान लीजिए टोटल रेंट आपको 6,000 आ रहा है, हाँ जी। 12 छिंग 72, एक ही प्रॉपर्टी, आप रिटायर्ड हैं, हाँ, टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल मान लीजिए 1.5 लाख आ रहा है, तो आपको एज ए लैंडलॉर्ड रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है मेरी ओपिनियन में। लेकिन प्रिकॉशनरी अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि नोटिस जब आएंगे या कुछ आएगा उसके बारे में मैं नहीं बता सकता अभी। क्या क्या जो बोर्ड है वो क्या गाइडलाइंस देगी ऐसे लोगों की जिनके नाम मीटर हैं लेकिन वो इनफैक्ट पेयर नहीं है, पेयर कोई और है। लेकिन सर ये इसमें ना आएगी। बिल्डर जो होता है, बिल्डर लेता है सर पेमेंट तो सारी, जो एनएसपीपी जैसे ऑफिस हो गए। सर जी बिल्डर तो अपना कहीं ना कहीं टैक्सेबल होगा, रिटर्न फाइल कर रहा होगा। वही तो है सर, वो तो उसमें ले तो रहा है, काम लेके कर खत्म रहा हो है। गया, तो वो खत्म आगे हो से गया। हाँ जी सर। टेनेंट ने अगर 1 लाख से ऊपर दिया और टेनेंट टैक्सेबल नहीं है हाँ। तो उसको भरनी चाहिए मेरे से। अच्छा। कि सिंगला जी ने भी ये पूछा ना, हाँ जी सर। हम हाँ जी। उन्होंने भी यही चीज पूछी ना। तो हाँ मेरी जी। ओपिनियन में टेनेंट जो खर्चा कर रहा है, जो पेमेंट दे रहा है, जिसके बैंक से पैसे जा रहे मनी हम्म। 1 लाख से ऊपर, वो भरनी चाहिए। अगर वो एसएससी नहीं है, एसएससी है तो चिंता मत करो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है सर। ठीक है सर, और क्वेरीज नहीं है सर, प्रोसीड करते हैं सर। अच्छा, ठीक है जी। ठीक सर। अब एक बड़ी चीज ऐसी आई जो मेरे जैसे को भी नहीं पता थी कि 23/8 के बाद इन्होंने ये कहा कि अगर कार लोगे तो आप, ये कंपनियों की बहुत बुरी हालत हो गई थी, तो इन्होंने पहुंचे तो मिनिस्ट्री ने कहा 45% डेप्रिसिएशन देंगे आप। जब तक ये मुझे पता लगा तब तक लॉकडाउन हो गया। 45% डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा मोटर व्हीकल पे अगर आपने 23/8/2019 के बाद और 31/3/2020 के बीच में लिए। ये एक सेपरेट इन्होंने परसेंटेज यहाँ इंक्लूड कर दी। 15, 30, 40 हुआ था, 45 और डाल दिए। रिपोर्टिंग ऑफ रेसिडुअरी इनकम विच इज चार्जेबल टू टैक्स एज पर DTAA, ये फॉरेन एसएससी से रिलेटेड है, जो उनको सारी डिटेल देनी है, कंट्री नेम, कोड, आर्टिकल किस में आप ले रहे हैं कंसेशनल टैक्स, और रेट क्या है, क्या आपने टीआरसी ली है नहीं ली है, क्योंकि टीआरसी से ही आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंसी पता लगेगी। तो इस तरीके से ये एक इंफॉर्मेशन इन्होंने मांगी है। अब सर 3, 5, 6 में सेकेंडरी एडजस्टमेंट, ये भी जो लोग फॉरेन टैक्सेशन करते हैं, प्राइमरी एडजस्टमेंट और सेकेंडरी एडजस्टमेंट। लास्ट ईयर इन्होंने ये लाए थे कि अगर मान लीजिए मैं लिटिगेशन नहीं करना चाह रहा और मैं ये कह रहा हूं मेरी कोई टीपी एडजस्टमेंट हो गई और मैं उसको टैक्स दे देता हूं, तो मेरे को उन्होंने कहा कि आप 18% टैक्स, सरचार्ज और एजुकेशन दे दें तो हम आपके वो केसेस को क्लोज कर देंगे। आप सेकेंडरी एडजस्टमेंट एक्सेप्ट करके अगर आप दे, तो उसको इन्होंने एक कॉलम सेपरेट से बना दिया इसका शेड्यूल, जिसका नाम TPSA, ट्रांसफर प्राइसिंग सेकेंडरी एडजस्टमेंट करके इन्होंने कर दिया। अब ये भी अमेंडमेंट आया सर, क्योंकि 43B में इन्होंने एनबीएफसी का भी, पहले तो बैंकों का होता था, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का होता था, एनबीएफसी और सिस्टमेटिकली नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी का भी अगर आप इंटरेस्ट नहीं देंगे तो 43B में डिसअलाउल है, और उसको इन्होंने पार्ट AOI में डाल दिया है 11 नंबर में DA कॉलम। ये सर अमेंडमेंट 2020 के बजट से आया और रेट्रोस्पेक्टिव है। ये सबसे ज्यादा हम लोगों को ध्यान देना है। अगर हमारा क्लाइंट कोई 5 करोड़ तक टैक्स ऑडिट नहीं कराना चाहता और उसका कैश पेमेंट 5% से
टोटल रिसीट से ज्यादा नहीं है या उसकी कैश रिसीट 5% से कम है तो वो टैक्स ऑडिट नहीं कराना चाहे तो ना कराए और वो अपनी नॉर्मल रिटर्न भर सकता है। ये पिछले साल से ही आ गया है असेसमेंट ईयर 2021 से। इसके अंदर डिस्क्लोजर क्या है? ये कहता है इफ नो वेदर ड्यूरिंग द ईयर टोटल, अगर आपने नहीं कराई टैक्स ऑडिट तो वो आपसे पूछता है टोटल सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीट ऑफ बिजनेस एक्सीड 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, यस और नो। इफ नो कि भाई एक्सीड नहीं करी तो आपका काम खत्म हो गया, एक्सीड कर रही है, इफ यस इज सेलेक्टेड इन A21 to Y whether the aggregate of all amount received during their receipt है for sales turnover or gross receipt or an capital account such as capital contribution loan during the previous year in cash does not exceed 5%। ये बजट में कुछ था और यहाँ कुछ और आ गया। वहां पे था 5% आपकी सेल टर्नओवर, यहाँ पे इन्होंने और चीजें इंक्लूड कर दी। ये मुझे समझ में नहीं आया, अभी मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ कि भाई ये कैसे आ गया, इन्होंने कहाँ से इसके अंदर डाल दी इतनी चीजें। और ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल अकाउंट सच एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन लोन्स। कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो मान लीजिए अगर आपको ट्रस्ट होना सकता है तो ये 7 में होना चाहिए था, 3, 5, 6 में नहीं है। कंपनी के अंदर आपको ये जो है वो कैसे कर रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आया। लोन्स, कैश लोन्स कैसे आ सकते हैं? सारे चेक से ही आते हैं। तो आपके अगर वो 5 करोड़ से नीचे है, मान लीजिए आपकी टर्नओवर 3 करोड़, ठीक है जी, और आपकी टर्नओवर और आपके लोन 2 करोड़, 5 करोड़ टोटल में से 5% कितना हो गया? 25 लाख। लेकिन ये 25 लाख आपके सारे के सारे सेल्स पे हैं, 24 लाख हैं। तो क्या आप यहाँ आ सकते हो? जबकि आपकी अगर मान लीजिए टर्नओवर 2 करोड़ है तो उसका 5% कितना बन गया? 5 दूनी 10। तो ये पॉइंट इसमें कैसे आया, ये इसके ऊपर अभी कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर थोड़ा सा अपनी क्लैरिफिकेशन लें, क्योंकि भी मैंने भी ये देखो फॉर्म अभी आए हैं, इसको मैंने भी रिसर्च अभी करी तो मेरे को ये पॉइंट बड़ा अजीब लगा और इसके ऊपर अभी मेरे को डेलिब्रेशन देखना पड़ेगा कि ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन और लोन वर्ड कहाँ से आ गया। तो ये एक पॉइंट फ्लैग करने लायक है। दूसरा, इफ यस इज सेलेक्टेड इन 2I, मतलब आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, 1 करोड़ और 5 करोड़, वेदर एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट मेड इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर और ऑन कैपिटल अकाउंट सच एज एक्विजिशन ऑफ एसेट, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, यहां भी मेरे को समझ में नहीं आया, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द सेट पेमेंट, यस और नो, वेदर लायबल फॉर ऑडिट, यस और नो। तो ये चीजें अपने को देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ 5% से नीचे है और मैं लाइबल फॉर टैक्स ऑडिट नो कर दूं तो ये सब चीजें कैसे कर दी, जबकि जो वर्ड थे, जो अमेंडमेंट आई, अभी मैं आपको चाहेंगे तो मैं क्या अमेंडमेंट थी उस पर भी समय बचा तो ले जाऊंगा। चलिए ITR 1 and 4 कोई ज्यादा चेंज नहीं है, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चेंज कर दी उन्होंने, थोड़ी बढ़ा दी है। फॉर्म नंबर 7, अब सर यहाँ पे ये जो है ये इन्होंने कहा कि वेदर द एप्लीकेशन इज मेड एज पर न्यू प्रोविजन, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने कोई ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर लिया था या कुछ कर लिया था। जो इस साल का अमेंडमेंट आया है वो अभी इसमें नहीं है, क्योंकि वो आपको री रजिस्ट्रेशन लेनी है, वो अभी नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट क्लॉज किया तो आपको नए प्रोविजन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा लेनी थी। सेक्शन अंडर विच रजिस्ट्रेशन इज अप्लाइड, date on which the application for registration approval as per new provision is made, such exemption opted under the new provision। तो ये एक इसके अंदर डिस्क्लोजर है। डोनेशन के अंदर इन्होंने कॉर्पस और नॉन कॉर्पस को कर दिया अलग।
पहले भी हम लोग करते थे, लेकिन हम डिस्क्लोजर कर दिया। अगर कॉर्पस के लिए दिया था तो वो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स नहीं माना जाता था, वो इन्होंने यहाँ पे अब अलग कर दिया। सिमिलरली इन्होंने डिसअलाउएबल एक्सपेंडिचर के अंदर उसको अलग से दिखा दिया। अगर आपने वहां पीछे नहीं दिखाया और यहाँ डिसअलाउ कर दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा, और यहाँ दिखा दिया और यहाँ डिसअलाउ नहीं करा तो वो भी गलत हो जाएगा। तो वी हैव टू बी केयरफुल। शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर इन्होंने डिलीट कर दिया है ये, क्योंकि अब जो है जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं उनको 112 ए की एग्जम्पशन नहीं है, तो उन्होंने इसको हटा दिया। ये तो हो गए सर आपके, अब रह गए 5 और 6। कोई क्वेरी है जी? और नहीं सर, अभी कोई क्वेरी नहीं आई सर। ओके, मैं टैक्स ऑडिट पे एक बार देखूंगा, कोशिश करूंगा मैं कुछ और देख सकूं। नाउ LIC का जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए एक सेपरेट डिस्क्लोजर आ गया है, उनको ये देना है अलग से, ये जो है कितना नेट प्रॉफिट है, एडिशन हुआ है, डिडक्शन है, और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में क्या उनको है, ये एक अलग से। सिमिलरली जो है लाइफ इंश्योरेंस वालों के लिए लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए 5 और 6 के अंदर ये अलग से इन्होंने लॉस फ्रॉम इंश्योरेंस लाइफ बिजनेस 115(b) सेक्शन को अलग से क्लासिफाई कर। अब ये सेपरेट रिपोर्टिंग इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड परचेज इन फॉरेन करेंसी बाय ऑफशोर फंड, ये 5 और 6 में है। ऑफशोर फंड पे अगर आपने कोई कर रखा है, ऑफशोर फंड क्या होता है सर, कि मान लीजिए सिंगापुर में मैं रेजिडेंट हूं, या मान लीजिए सिंगापुर से मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैंने एक कंपनी कैमरिन आइलैंड पे खोल दी। कैमरिन आइलैंड ये कहता है कि आप मेरे यहाँ कोई बिजनेस ना करें, ऑफशोर है, कैमरिन आइलैंड से बाहर कहीं शोर पे करें। मोस्टली हांगकांग से लोग करते थे, क्योंकि हांगकांग से ट्रीटी वीटी नहीं थी, ये वहां चलता था। तो इन्होंने ये कहा कि अगर आपने कोई यूनिट ऐसी खरीद रखी है जो ऑफशोर फंड है तो उसको सेपरेट डिस्क्लोजर करो, क्योंकि ऑफशोर फंड के अंदर हमको उसकी टैक्सेबिलिटी के ऊपर भी अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए एक और आ गया, क्योंकि लास्ट ईयर ये अमेंडमेंट आया कि आप जो है दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं फॉर दी स्पेसिफाइड कंडीशन जो उसमें दी हुई। तो उन्होंने ये कहा कि आप प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 पे अगर ले रहे हैं तो आप उसको डिस्क्लोजर दें कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड पे ले रहे हैं, लेट आउट है, डीम लेट आउट है, दो चीजें पहले थी, अब सेल्फ ऑक्यूपाइड को भी इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया। 54E डबल ई इसलिए रिमूव कर दिया इन्होंने कि कोई इन्होंने ऐसा जो है वही नहीं, बॉन्ड ही नहीं इशू किया जो कि 54E में करना था 1/4/19 के बाद 31/3 तक 2020 तक, तो इसलिए इसको हटा दिया। ये 2, 3, 5, 6 112A और 115AD ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो एग्जम्प्टेड है, और जो 10% वाला है उससे रिलेटेड इन्होंने रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए अलग अलग डिस्क्लोजर बना दिए। ये कंप्लीट डिस्क्लोजर है, इसके अंदर नेम ऑफ शेयर होल्डर, यूनिट, ये सब डिटेल देनी है, और ये जो है आपको बताना है कि जनवरी 31 तक क्या था उसका, आगे क्या हुआ, फेयर मार्केट वैल्यू क्या हुई। तो ये पहले भी था, इसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक इन्होंने 115 AD1 के लिए किया है और 112A के लिए अलग अलग। अब सर चेंजेस जो 3 और 6 में है सर, AOP को किसी भी तरीके का या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को किसी भी तरीके की इंटरेस्ट सैलरी की डिडक्शन नहीं मिलेगी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन, तो इसके लिए इन्होंने अलग से डिस्क्लोजर दे दिया है कि आपको कोई डिडक्शन नहीं, आप उसको अगर डेबिट किए हैं तो डिसअलाउ करें टू द एक्सटेंट नॉट अलाउएबल। 2, 3 और 7। अब आपको टाइप ऑफ द कंपनी बतानी है, प्राइवेट है, डीम्ड है, सेक्शन 8 है, क्या है, ये अभी सब आएगा, क्योंकि 2, 3 और 7 की प्रॉपर वो नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये चेंज है।
टाइप ऑफ कंपनी पहले नहीं था, अब इन्होंने डाल दिया। और ये थैंक सर, फाइनेंस एक्ट 2020 में इन्होंने कहा, ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। मैं भी जब भी जाता था, मैं हमेशा कहता था इनको, भाई तुम ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रखते? 10 लाख से ऊपर बैंक में पैसे जमा करा दिए, 6 साल बाद आके नोटिस दे दिया। मेरा क्लाइंट मुझे कुछ बताता नहीं है, बाद में आके रोता, जी आपने पूछा नहीं। जब मैं पूछता हूं तो कुछ नहीं बताता, गाड़ी खरीद लेता है बताता नहीं है, और बहुत सारी चीजें करता है बताता नहीं है। तो अभी क्या है, इन्होंने 26 ईयर्स को डिसमेंटल करके रिवाइज कर दिया। पहले ये था 203AA, इसको इन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ओमिट करके, और नया सेक्शन इन्होंने ला दिया 285BB, और इसको इन्होंने नाम दे दिया AIS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। और ये कब से एप्लीकेबल है जी? 1 जून 2020। मतलब आज कौन सी तारीख में बैठे हम? 5 दिन हो गए सर इसको। मेरे को ऐसा जकड़ दिया मोहित जी कि एकदम लेटेस्ट बनाओ, अभी हर चीज एकदम लेटेस्ट चाहिए। अब आप देखो सब, इसके अंदर इन्होंने क्या कहा। इन्होंने ये बोला कि अब पुराना वाला हटा दिया, बड़े खुश चला गया, लेकिन अब क्या क्या डालना है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता क्या है कि एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई, कैपेसिटी ऑफ सिस्टम बढ़ गई, मल्टीपल इंफॉर्मेशन आती है एक पर्सन की, क्या क्या चीज की? सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर ट्रांजेक्शन। उसके बाद कंप्लायंस, दिस इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड टू एसएससी बाय अपलोडिंग द सेम इन द रजिस्टर्ड अकाउंट ऑफ द एसएससी ऑन डेजिग्नेटेड पोर्टल ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सो दैट, ये बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट है, same can be used by SSC for filing of return of income and calculating his correct tax liability। यहाँ बिल्कुल ठीक है, जहां तक मुझे पता ना हो, मेरे कंसल्टेंट को बताना हो, तो ये मुझे समझ में आता है। लेकिन अब साहब, ये इंफॉर्मेशन जो है कहाँ कहाँ कौन कौन मांगेगा, इसके बारे में ये अभी ये क्या क्या होगी, इसके लिए रूल 114 आई इन्होंने दिया। प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल आपको सिस्टम ये बताएगा। क्या? टीडीएस पहले भी आता था, एसएफटी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, 2 लाख से ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी परचेज सेल, पेमेंट ऑफ टैक्सेस पहले भी आता था, डिमांड एंड रिफंड ये भी आता था, पेंडिंग प्रोसीडिंग, completed proceeding, or information received from any officer, authority, or body performing any function under any statutory duty। अब आप ये देखो, एनी लॉ के अंदर अगर वो आएगा तो अब क्या है, जीएसटी वाला भी यहां डाल पाएगा, कस्टम, एक्साइज, पुलिस, कोई भी चीज डाल देंगे। और सुनिए, इंफॉर्मेशन रिसीव अंडर दिस एग्रीमेंट 1990 वाली भी आएगी। अगर मान लीजिए मेरा अकाउंट खुल गया, वो यहाँ डाल देंगे। फ्रॉम अदर पर्सन टू द एक्सटेंड इट में डीम फिट इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू इन द एनुअल स्टेटमेंट रेफर्ड इन सब रूल 1। अभी ये क्या कहते हैं साहब, अब मैं आपको एक बार पिछली स्लाइड पे फिर लेके जाऊंगा। अब ये बस लास्ट स्लाइड है, इसके बाद पूछ लीजिए। ये इन्होंने क्या कहा यहाँ पे और क्या क्या चीज चाहिए। अब आपका पैन भी दे देंगे, आधार भी दे देंगे, नाम दे देंगे, डेट ऑफ बर्थ दे देंगे। कितना डेंजरस हो गया ये। अगर ये प्रिंट आउट निकाल के डेट ऑफ बर्थ चली गई तो क्रेडिट कार्ड सारे रिलेटेड है, मोबाइल नंबर है वो सब रिलेटेड है, ईमेल एड्रेस ये इसके ऊपर अभी जो है इनसे जो है डिस्कशन करना पड़ेगा कि भाई तुम ये कैसे दे दोगे। कई चीजें ऐसी हैं जो अब मेरे को बैंक वाले ये कहेंगे, जी आपने लोन लेना है, हमें 26 ईयर्स का प्रिंट आउट निकाल के दो।
क्योंकि आपको यहाँ TDS की डिटेल मिल रही है और स्पेसिफाइड फाइनेंशियल मिल रही है, टैक्सेस मिल रहे हैं, डिमांड प्रोसीडिंग मिल रही है और कोई भी अदर इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये जो है अपने आप में एक बड़ा इश्यू है जिसको हमको अभी ये देखना पड़ेगा क्या है। ये सिर्फ ये चेंज है जो सो फार एज आपका रिलेटेड टू 26 ईयर्स है।